India and we too are gearing for yet another round of general elections. In fact, the 16th one. The India Today Group has always tried to do something new and unique and constructive during these times. Elections, in fact, are a passion for us. We were the first to introduce opinion polls in India way back in the 80s, and I'm proud to claim that we got it almost absolutely right. As a broadcaster, Aaj Tak did 72 hours of continuous live telecast of election results, Aapka Faisla in Hindi in 1998 elections. In the 99 elections, when we were still with Doordarshan, we went bilinguals, telecasting for 72 continuous hours in both Hindi and English. After the launch of Aaj Tak as a 24-hour news channel in 2001, it has remained the undisputed leader of election coverage in all subsequent elections. In 2004, Lok Sabha elections, we launched 100 Ghante 100 Reporter, the first ever telecast of elections with a continuous 100 hours of live, round-the-clock coverage going right till the end until the government was formed. The practice of trying to do something innovative for every elections is somewhat of a tradition with us. As a part of that practice, I'm happy to welcome you to yet another election coverage milestone, the Panchayat Aaj Tak. This election is unique in more than one way. This is the first time when the reigning Prime Minister has already announced his retirement. This is the first time that a Chief Minister of the state has already been announced as the Prime Ministerial candidate of the main opposition party. The election is also important in that sense, as a member of the Gandhi family is once again in the race. For Prime Minister or not, I'm not sure, but he's in the race. But this indeed is an election where the regional leaders have probably never been so strong. Added to this is the most recent sensational political phenomenon, Mr. Arvind Kejriwal. This also happened for the first time in an election that the rise of a one-year-old party has forced the champion players to re-look at their strategies. For some, Mr. Kejriwal is a spoiled sport. For others, he's a savior. This, of course, is an issue that will form part of the debate in the Panchayat. I wish that this election sees an issue-based fight amongst contenders. We will debate the whole day today over these big issues that include corruption, inflation, unemployment, women's empowerment, and their safety. I would like to take this opportunity to underline the fact that unfortunately this election has also seen the media, the fourth estate, to come under some flack, or being accused of being one-sided and biased, or being run by corporate interests. But as one prominent leader told me, he says, no politician is ever happy with the media. I think a truer word has never been said. But we take it in our stride, because in India Today Group, our credo has always been balanced and credible and unbiased coverage, news without fear or favor. We hope that after the day-long deliberations, you will return a bit more enlightened and clear-headed about the issues at stake, and that you are a better informed voter. I hope that all of you will vote when the time comes. Please do. It's the precious right denied to many in the world. Don't waste it. Thank you, and have a good day. बहुत बहुत धन्यवाद मिस्टर पुरी। और जैसे कि पुरी साहब ने अभी कहा कि आज दिन भर जो चर्चा होगी, उसके बाद आपके दिमाग में भी, आपके दिल में भी कई सवाल आएंगे, लेकिन सवालों की झड़ी यहां लगने वाली है, क्योंकि अपने पहले ही सेशन में हम बुला रहे हैं दो दिग्गजों को। हमारा जो सेशन है वो है किसका होगा राज तिलक, और इसके लिए जिन दो खास मेहमानों को हमने बुलाया है वो हैं कांग्रेस के महासचिव दिग्विजय सिंह जी और साथ ही साथ राज्यसभा में बीजेपी के उपनेता रविशंकर प्रसाद जी। इस सेशन को मॉडरेट करेंगे मेरे कलीग, हमारे सीनियर पुण्य प्रसून वाजपेयी जी। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ स्वागत कीजिए, क्योंकि चुनाव में अभी बहुत वक्त है, उसकी तालियां बाद में बज जाएंगी।
दिग्विजय सिंह और रविशंकर जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। दो ऐसे शख्स हमारे साथ हैं आज। 70 के दशक में दोनों ने सार्वजनिक या कहें राजनीतिक जीवन में कदम रखा। देश ने उस वक्त इंदिरा गांधी की सत्ता को देखा। ये हमसे बहुत सीनियर हैं आप। 70 के दशक की ही बात ठीक है मेरे ख्याल से। हमको लगता है कुछ और चीज़ खोलें तो उसमें और शानदार चीज़ है कि रविशंकर जी के पिता जो थे वो जनसंघ के फाउंडर्स मेंबर्स में थे, सही है ना? और दूसरा हिस्सा यह भी है कि दिग्विजय सिंह के पिताजी ने भी चुनाव लड़ा था 1951 में, 52 में, जो 51 में ऐलान हुआ था 52 में लड़ा था, और जनसंघ ने सपोर्ट किया था। नहीं मैंने आप इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ रहे थे। हाँ, और उसमें हिंदू महासभा के कैंडिडेट थे, कांग्रेस के थे। और हिंदू महासभा के कैंडिडेट थे और कांग्रेस कैंडिडेट थे, उन्होंने इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा। और विजय राजे सिंधिया जी चाहती थी कि आप इधर ही आ जाएं, विजय राजे सिंधिया उस समय कांग्रेस में थी और वो फिर साथ में लेकिन थोड़ा हिस्ट्री थोड़ा ठीक RSS पढ़ा में करिए लेकर आना मैं। चाहती थी, ऐसा भी कुछ था। वो 1971 71 की बात है। 1969-70। हाँ एग्जैक्टली। तो खैर बहरहाल राजनीति बदलती है, इतिहास बदलता है, और इन सब के बीच आज हम लोग जहां पर आकर खड़े हैं एक ऐसे मोड़ पर हैं 2014 जो दस्तक दे रहा है। दरअसल एक नए तरीके के इतिहास रचने की दिशा में हम लोग जा रहे हैं। ये पहला मौका है अपने तौर पर कि नरेंद्र मोदी को सड़क पर आके चाय पीना पड़ता है, राहुल गांधी जी को प्लेटफॉर्म पे जाके कुलियों के बीच बैठना पड़ता है। इसका एक मतलब तो बहुत साफ है कि जनता के बीच नेताओं की मौजूदगी अब कमरे में बैठकर टेलीविजन पर आकर माइक पे भाषण देकर महज नहीं होगी, बात आगे बढ़ गई है। परिस्थितियां दिग्विजय सिंह जी आपके देखते देखते इतनी क्यों बदल गई? जिस रास्ते अब राज तिलक का रास्ता जा रहा है, अचानक इतने झटके में क्यों बदल गई? प्रसून जी, पहले तो बात मैं ये कहूँगा कि आज हम सब राजनेताओं के लिए, राजनीतिज्ञों के लिए एक सबसे बड़ी चुनौती ये है कि जनता के बीच में राजनीति और राजनीतिज्ञों के प्रति अविश्वास बढ़ता जा रहा है। और हम सब लोगों के लिए ये भी चुनौती है कि आम जनता ये महसूस करती है कि राजनीति और राजनीतिज्ञों पर ज़्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता। अभी अगर आप देखेंगे कि 15वीं लोकसभा में इन्होंने ये रिकॉर्ड कायम किया है कि सबसे ज़्यादा समय बर्बाद जो हुआ है वो इसी लोकसभा में हुआ है। आखिर जनता हमें यहाँ क्यों भेजती है? इसलिए भेजती है कि हम लोग यहाँ जनता से जुड़े हुए सवालों पर चर्चा करें, विवाद करें, निर्णय लें। लेकिन देखने में आया है कि ज़्यादा समय हमारा इसी बात पे होता है कि हमारी बात सुनिए नहीं तो हम चलने नहीं देंगे। माननीय अध्यक्ष जी भी और राज्यसभा में भी नियम होने के बावजूद भी जो लोग संसद चलने नहीं दे रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है। ये भी एक बिंदु है। दूसरी बात यह है कि अब लोगों में राजनीतिक चेतना बढ़ गई है, और राजनीतिक चेतना जब बढ़ी है तो एक अच्छे संकेत हैं और हम सब के लिए चुनौती है। विजय सिंह जी, एक मिनट, आपने कहा राजनीतिक चेतना बढ़ गई है। मेरे ख्याल से यहाँ जितने लोग मौजूद हैं सब ने कल टेलीविजन देखा और रेल बजट देखा। रेल बजट यूपीए के मंत्री पढ़ रहे हैं, उन्हें नहीं पढ़ने देने के लिए यूपीए के मंत्री वेल में हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। यही मैं आपसे जो कह रहा हूं कि जिस प्रकार से माननीय अध्यक्ष जी ने, पूरा उनका सम्मान के साथ ये कहूँगा कि ये नियम है लोकसभा के बिजनेस रूल्स में, ये है कि जो भी कोई वेल में आता है उसको ऑटोमेटिकली सस्पेंड कर दिया जाना चाहिए। हालांकि उसका कभी उपयोग हुआ नहीं है, लेकिन धीरे धीरे ऐसा लगता है कि उसका भी उपयोग होना चाहिए, ताकि जो रेल बजट है या दूसरे जैसे डिसेबिलिटी बिल है, कुछ भ्रष्टाचार के खिलाफ कुछ बिल हैं, उस पर चर्चा करने का लोगों को अवसर तो मिले। जनता के नज़रों में हम लोग इतने ना गिर जाएं कि आज अगर आप किसी भी सड़क पर जाते हुए आदमी से पूछेंगे भाई संसद में क्या हो रहा है, अरे साहब कुछ नहीं हो रहा है। तो प्रश्न यही है कि सबसे बड़ी चुनौती आज हम लोगों के सामने, रविशंकर जी और हम सब के सामने यही है कि कैसे जनता के बीच में बढ़ रहे अविश्वास को हम विश्वास में परिवर्तित करें। ये आज, ताकि हम प्रजातंत्र को भी बचा सकें। लोगों को अगर प्रजातंत्र पे ही अविश्वास पैदा हो जाएगा तो हम सबके लिए खतरा है। रविशंकर जी, हमने जिक्र इसलिए किया था कि परिस्थितियां बदल गई है, उसमें एक नया शब्द इन्होंने जोड़ दिया दिग्विजय सिंह जी ने कि अविश्वास हो गया है नेताओं पर से। लेकिन हमारे जहन में एक चीज़ बड़ी साफ है, 2009 का चुनाव हो रहा था, लाल कृष्ण आडवाणी जी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार थे
और जो एक वार रूम बनाया गया था वहाँ कंप्यूटर बिखरे हुए थे, माने तमाम चीज़ें थी और हमें याद है सुधींद्र कुलकर्णी उसमें व्यस्त थे। लेकिन एक नई तस्वीर 5 बरस में हम देख रहे हैं, बदल गई है। क्यों ऐसा हो गया है? वाजपेयी जी, पहली बात मैं ये कहना चाहूंगा कि मैं दिग्विजय जी की इस बात से डिफर करता हूं कि देश की जनता को पॉलिटिक्स से और पॉलिटिशियन से वितृष्णा हो गई है। मैं ऐसा मानता हूं, मैं जेपी मूवमेंट से स्टूडेंट लाइफ से सक्रिय रहा हूं, कई चुनाव देखे हैं। ये पहली बार देश में स्पष्ट हो रहा है, देश की जनता जानती है कि वो किसी भी नेता को कितना भी लोकप्रिय हो और कोई पार्टी हो कितनी भी बड़ी हो, उसको सत्ता से हटा सकती है, प्रदेश में या देश में। जनता को अपनी वोट की ताकत का इल्म हुआ है। क्षमा करेंगे। दूसरी बात, अभी चुनाव हुए हैं, आपने देखा कई को सत्ता से बाहर किया गया और कई सिटिंग चीफ मिनिस्टर को 2/3 बहुमत दिया गया, किसी को 3/4 बहुमत से लाया गया। जनता आजकल हमसे एक डिफरेंट परफॉर्मेंस की अपेक्षा करती है कि आपको हमने मत दिया, आप आइए, आप काम करिए, आप गवर्नेंस करिए, आप डिलीवर करिए। अब दिग्विजय जी ने बात कही, मैं भी चिंतित हूं। अब मैं अपने विपक्ष का उपनेता हूं वाजपेयी जी, हम 11 बजे से मौन बैठे रहते हैं। क्या इनका अपने पार्टी पर कोई, अपने एमपी पर कोई नियंत्रण नहीं है क्या? राज्यसभा में 3 दिन से इन्हीं के पार्टी के लोग कहते हैं यूनाइटेड आंध्रा, इन्हीं के पार्टी के लोग वेल में आके कहते हैं तेलंगाना बनाओ। हमारा भी सपोर्ट है तेलंगाना के लिए, हम चाहते हैं। इनके मंत्री लोग आते हैं, इनके मुख्यमंत्री धरना देते हैं, सिटिंग चीफ मिनिस्टर। तो क्या मैं दिग्विजय बाबू से यह उम्मीद करूं कि इनकी पार्टी का अपने मुख्यमंत्री पर, अपने मंत्री पर कोई नियंत्रण नहीं है? क्या सब कुछ स्पीकर के ऊपर है? संसद समझदारी से भी चलता है। ये मुझसे अधिक अनुभवी है, मुख्यमंत्री रहे हैं, मुझे भी संसद में रहे 14 साल हो गए। मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं वो नियंत्रण टूट रहा है। अब आपने जो 2009 की बात कही, कंप्यूटर भी होगा जी, और आपके ऑनलाइन भी होगा, लेकिन लोकतंत्र में ऑफलाइन भी बहुत जरूरी है, जैसा मोदी जी ने भी कहा एक बार। और इस ऑफलाइन में क्या है, मैं हमेशा मानता हूं कि लोकतंत्र क्या है वाजपेयी जी? संवाद है, चर्चा है, जवाबदारी है। जनता के बीच जाइए, चौपाल में जाइए, आपकी पंचायत में आइए या चाय पर जाइए, लेकिन कहीं ना कहीं तो आपको जवाबदारी देनी पड़ेगी। और मैं हमेशा मानता हूं कंप्यूटर भी ठीक है, सॉफ्टवेयर भी ठीक है, लेकिन लोकतंत्र में आई कांटेक्ट बहुत जरूरी होता है। और आज देश की जनता जानती है कौन नेता की आंखें सही बोल रही हैं और कौन नेता की आंखें दिखावा रविशंकर कर जी, रही हैं। अपना प्रोफेशन चाय बेचते हुए और दलितों के बीच हमने कोच्चि में सभा देखी, हमें एक चीज समझ नहीं आई कि किसी भी स्वयंसेवक की ट्रेनिंग इस देश में जातीय आधार पर नहीं हुई थी, किसी काम को लेकर नहीं हुई थी, लेकिन राजनीति का मंत्र क्या का गहरा पढ़ा जा रहा है, सड़क पे जोड़ा जा रहा है, जातीयता से जोड़ा जा रहा है। हम एक नई चीज देख रहे हैं इस दौर में 2014 को लेकर। देखिए, मैं खुद नरेंद्र मोदी इस बात को जिक्र कर रहे हैं, खुले तौर पर कर रहे हैं। देखिए, पहले मैं एक बात कहूंगा, जो चाय वाले की बात आई, तो ये शुरुआत किसने की? इनके एक अच्छे मित्र हैं, उन्होंने कहा कि हम उनको चाय की दुकान खोलने का अवसर दे देंगे। लेकिन बड़ी बात क्या है, हिंदुस्तान की लोकतंत्र में एक बदलाव हो रहा है। एक नेता जो प्रधानमंत्री का उम्मीदवार है, वो खुलकर बोलता है कि मेरी मां पड़ोस में कपड़े साफ करती थी, मेरे पिताजी चाय की दुकान चलाते थे। ये हिंदुस्तान के लोकतंत्र की विजय है। जो आपने जाति की बात की, देखिए अपनी अपनी समझदारी की बात है। बीजेपी के सिद्धांत, हमारा राष्ट्रवाद का विषय, हमारे गुड गवर्नेंस का विषय, ये हमेशा मोदी जी का फोकस है। लेकिन हमने योजनाबद्ध तरीके से पिछड़े लोगों को प्रमोट भी किया। आवश्यकता है क्या? कल्याण सिंह हो, उमा भारती हो, शिवराज सिंह चौहान हो, गोपीनाथ मुंडे हो, नरेंद्र मोदी हो, और सब आगे चमके। तो लोकतंत्र की जो संक्रमण की प्रक्रिया है, इसका सम्मान होना चाहिए। इसमें क्या दिक्कत है? नहीं, सम्मान है। दिग्विजय सिंह जी, क्या ये मान लिया जाए कि राजनीति इस दौर में अराजक की स्थितियों से गुजर रही है? यदि आप देखेंगे 15वीं लोकसभा की जब बात मैंने की थी, इसलिए की थी, तेलंगाना का मसला तो अभी आया है, लेकिन उसके पहले भी अगर आप देख लें तो 2009 से लेकर 2013 जुलाई तक भी जिस प्रकार से किसी भी विषय पर संसद को नहीं चलने देना एक आम बात हो गई है।
और इसी प्रकार से अगर आप देखेंगे कि पूरे देश में राजनीतिज्ञों की कथनी और करनी में अंतर होने का एक धीरे धीरे युवकों में और पढ़े लिखे लोगों में भी और आम जनता में भी इस बारे में अविश्वास बढ़ा है। फिर भी मैं आपसे कहूंगा कि इस देश की प्रजातंत्री व्यवस्था और प्रजातंत्री जड़ें मजबूत हैं और ये इस बात से भी साबित होता है कि धीरे धीरे वोटिंग परसेंटेज भी हमारा बढ़ा है। हालांकि उसका कारण दूसरा भी है कि इलेक्शन कमीशन ने वोटर लिस्ट काफी अच्छे ढंग से बनाना प्रयास शुरू किया है। जो आपने कहा है मैं फिर उसको दोहराना चाहता हूं कि हम सब की जवाबदारी और जिम्मेदारी जनता के प्रति है। आज जो चुनाव पर्सनैलिटी बेस्ड होता चला जा रहा है, हम चाहते हैं कि वो विचारधारा पर हो। आखिर संसदीय प्रणाली हमारी जो है वो विधायक चुनती है, संसद चुनती है और उसके बाद जिसका बहुमत होता है वो अपना नेता चुनकर उस पर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बनता है। अगर उसको प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ हम लोग चुनाव बना दें तो फिर उस प्रतिनिधि के प्रति भी अन्याय है और वोटर के प्रति भी अन्याय है कि वो किसको वोट दे रहा है और किसके लिए दे रहा है। कांग्रेस की विचारधारा क्या है? कांग्रेस की विचारधारा महात्मा गांधी की विचारधारा के आधारित पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जिस प्रकार से इस देश की आर्थिक मजबूती के लिए सेक्युलरिज्म और सोशलिज्म का एक ढांचा तैयार किया, मिक्स्ड इकोनॉमी का ढांचा तैयार किया, इंक्लूसिव पॉलिटिक्स का ढांचा तैयार किया, मूल रूप से यही हम लोगों की। महात्मा गांधी की यह धारा नहीं है, नेहरू की धारा थी मिक्स्ड इकोनॉमी। महात्मा गांधी की विचारधारा थी इंक्लूसिव पॉलिटिक्स, ग्राम स्वराज और डिवोल्यूशन ऑफ पावर, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, ये भी हम लोगों ने उसको दिया है। हमने बड़े शार्प देखे हैं आपके और बीजेपी के बीच एक सांप्रदायिकता का मसला, चाहे वो बटला हाउस से शुरू होता हो, उसको लेकर जो आपके रिएक्शंस रहे, या फिर जो धमाके हुए, चाहे वो मालेगांव की बात हो, समझौता एक्सप्रेस हो, और इन सब के बीच हमने बड़े शार्प रिएक्शंस आपके अंदर देखे हैं कि आप विचारधारा के साथ आरएसएस की एक दीवार अपने सामने लाकर खड़े कर देते हैं और दूसरी तरफ बीजेपी उसी आरएसएस के आसरे जेपी का जिक्र करके उस दीवार को ढा के बताती है कि तानाशाही तो कांग्रेस करती रही है। इस पे हम जरा कमेंट चाहेंगे, तब आगे। मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं कि इस देश में कट्टरपंथी विचारधारा चाहे हिंदुओं की हो, चाहे मुसलमानों की हो, चाहे सिखों की हो, चाहे ईसाइयों की हो, हम लोगों ने हमेशा उसके साथ संघर्ष किया है और कभी उसके साथ समझौता नहीं किया है। और इसलिए आज़ादी के पहले भी और आज़ादी के बाद भी हम लोगों ने हमेशा कट्टरपंथी हिंदू और मुस्लिम विचारधाराओं दोनों का विरोध किया है। और कट्टरपंथी विचारधारा ही अंतर्गतवा आतंकवाद को जन्म देती है। किसने नहीं किया है? किसने नहीं किया? सुन लीजिए, इसीलिए मैंने मुख्यमंत्री काल में इस बात का पूरा ख्याल रखा था और इसीलिए मैंने बजरंग दल और सीमी, स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया, इन दोनों के खिलाफ बंदिश लगाने के लिए केंद्र सरकार से अनुरोध किया था। और मैं हमेशा से इस बात को कहता आया हूं, चाहे हिंदू कट्टरपंथी विचारधारा हो, चाहे मुस्लिम कट्टरपंथी विचारधारा हो, ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और इसका मैं विरोध करता आया हूं। राजतलक के रास्ते में रविशंकर जी, एक ऐसा ये इशू है जो संयोग से इस देश को दो हिस्सों में बांटने की स्थिति में लाकर खड़ा कर रहा है। इसको लेकर घबराहट है या ये वोट बैंक को लेकर एक चाहत है, क्या है? देखिए, दिग्विजय जी ने जो भी बातें कही वो काफी दिन से बोल रहे हैं और मैंने कई बार सार्वजनिक रूप से टिप्पणी की है कि दिग्विजय सिंह ऐसा बोलते हैं तो हमें अच्छा लगता है, क्योंकि उससे हमारा वोट और बढ़ता है, इसलिए बोलते रहे, हमें खुशी होगी। और ये बात मैं बहुत जिम्मेदारी से बोल रहा हूं। देखिए, सांप्रदायिकता का विरोध, सेक्युलर कम्युनल डिवाइड, ये आज से थोड़ा ना है। जब 400 के बहुमत वाले राजीव गांधी शाहबानों पर झुके तो ये कौन सी पॉलिटिक्स थी? उस समय तो हम दो थे, सिर्फ 84 में जीते थे, हम कहीं नहीं थे। अगर दिग्विजय सिंह, बाटला हाउस कांड होता है, इंस्पेक्टर मोहन शर्मा मारा जाता है और जाते हैं आजमगढ़ और सवाल उठाते हैं कि पूरे बाटला हाउस के मामले पर ये कौन सी पॉलिटिक्स है? हमको तो इन्होंने बहुत कुछ कह दिया। ये विषय मैंने उठाया था और पूरी कांग्रेस पार्टी को इनके स्टेटमेंट से अपने को अलग करना पड़ा था और आज कन्विक्शन हुआ है। इनकी सरकार मोहन शर्मा को अशोक चक्र देती है,
राजपथ पर 26 जनवरी पर, तो ये चर्चाएं बहुत हुई, होती रहेंगी। इनका भी अधिकार है अपनी बात बोलना, मेरा अधिकार है प्रतिकार करना। लेकिन आज जब सेक्युलर कम्युनल की वाजपेयी जी बात आती है तो मेरी सोच दूसरी है। ये देश आगे बढ़ गया है, ये देश की सोच आगे बढ़ गई है। इस देश में एक नया आत्मविश्वास आया है, वो हिंदू हो या मुसलमान हो, और वो जानते हैं कि समय समय पर राजनीतिक सुविधा के लिए ये बातें उठाई जाती हैं। आतंकवाद में कोई भी सक्रिय कार्रवाई करिए, वो कोई हिंदू हो या मुसलमान हो, उनके कोई पेट्रोन हो, ईमानदारी से कार्रवाई करिए, कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन आज इस देश की तरुणाई, वो हिंदू हो या मुसलमान हो, अगड़े हो या पिछड़े हो, उत्तर हो या दक्षिण हो, पूरब हो या पश्चिम हो, वो अपेक्षा करता है डेवलपमेंट की, गवर्नेंस की, ग्रोथ की, जॉब्स की, हिंदुस्तान में एक नए विश्वास की। मुझे लगता है कि आज जो हम पॉलिटिक्स करते हैं, हमको उन नई अपेक्षाओं के अनुरूप उतरना पड़ेगा। और उसका संकेत मैं ये देखता हूं कि जो चीफ मिनिस्टर अच्छा गवर्न करते हैं उनको एक बार नहीं 3-3 बार इलेक्ट करते हैं, 2/3 मेजॉरिटी देते हैं। जो अच्छा नहीं करते हैं उनकी विदाई होती है। शायद हम ये उम्मीद करें कि देश में बदलाव का समय आया। रविशंकर जी, आपको कैसा लगा जब आपने देखा राहुल गांधी रेलवे स्टेशन पे कुलियों से बात कर रहे हैं? कोई आपत्ति नहीं है। नहीं लगा कैसा? नहीं, ये लोकतंत्र का नया चेहरा है। लेकिन एक बात मैं कहूंगा कि जो दिग्विजय जी ने भी बात की प्रेसिडेंशियल फॉर्म के चुनाव की, तो मैं इनको एक बात के लिए धन्यवाद दूंगा कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री को उम्मीदवार न बने, एकमात्र पहल इन्हीं की रही है मुहिम या इनका स्टेटमेंट। बाकी तो राग दरबारी चल रहा है कि उनको बनना चाहिए। अब वो बनते हैं नहीं बनते हैं ये इनकी पार्टी का विषय है। लेकिन अगर आज वो जा रहे हैं, अच्छी बात है, जाना चाहिए, क्या दिक्कत है। अगर एक इंटरेक्शन का नया मिजाज आ रहा है देश के लोकतंत्र में, जो आज तक पर भी होता है, चाय की चुस्की पर फुटपाथ पर भी होता है, और कहीं छोटे ग्रुप में रेलवे प्लेटफॉर्म पर भी होता है, तो अच्छा है, होने दीजिए इसको, क्या फर्क पड़ता है। दिग्विजय सिंह जी, आपको कैसा लगा? चाय की चुस्की ले रहे थे सड़क पर बैठकर नरेंद्र मोदी। नहीं, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। मैं इस बात अच्छा, आप दोनों ने कहा आपत्ति मैं इस नहीं बात है। को कहूंगा कि मणिशंकर अय्यर जी की जो टिप्पणी थी, मैं तो उसके सहमत नहीं हूं, मैं निंदा भी करता हूं उस बात को, और हम लोगों ने उसकी निंदा भी की है। लेकिन जहां गवर्नेंस की बात आती है, डेवलपमेंट की बात आती है, 2-3 बिंदुओं को मैं पब्लिक डोमेन में लाना चाहता हूं। कौन सा ऐसा राज्य है जहां की 30, ये क्या गुड गवर्नेंस है? कौन सा ऐसा गुड गवर्नेंस है जहां गरीबों की संख्या बढ़ रही है, जहां कुपोषण की बच्चों की संख्या बढ़ रही है? ये कौन सा गुड गवर्नेंस है? और जहां तक बटला हाउस की बात थी, बटला हाउस में हम लोगों ने केवल मांग की थी जुडिशियल इंक्वायरी की, उससे ज्यादा कोई हम लोगों ने मांग नहीं की थी। हमारा ये मकसद हमेशा से रहा है, और ये भी एक विधिवत है। कहीं भी इनकाउंटर होता है पुलिस का, तो वहां मजिस्ट्रियल इंक्वायरी और जुडिशियल इंक्वायरी होना स्वाभाविक है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल, ये लीगल प्रोविजन है, इसकी मांग करना कोई अनुचित बात नहीं थी। जहां तक कनेक्ट की बात है, पॉलिटिक्स क्या है, राजनीति क्या है? जनता के बीच में जाकर जनता से, लोगों से बातचीत करके चर्चा की जाए, मिला जाए। जैसा कि आपने कहा कि आई कांटेक्ट होना चाहिए, बिल्कुल सही है। और इसी बात की हम लोगों के शुरू से प्रक्रिया रही है कि जनता के बीच में जाकर हम लोग चर्चा करें, बात करें। पिछले 10 बरस में मनमोहन सिंह के आई कांटेक्ट जनता के साथ कब रहे? जहां तक डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का प्रश्न है, वो कोई रन ऑफ द मिल पॉलिटिशियन नहीं है। वो टेक्नोक्रेट रहे, ब्यूरोक्रेट रहे, और उनको राजनीति में 1991 में आने का अवसर तब मिला जबकि हमारी अर्थनीति इतनी खराब हो चुकी थी कि हमारा सोना गिरवी रखना पड़ रहा था। और उस समय उनको यहाँ पे नरसिम्हा राव जी ने वित्त मंत्री जी की कुर्सी दी, और उन्होंने वित्त मंत्री के रूप में बेहद इस देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने में जो नींव रखी, उसी की वजह से आज हम लोग कंट्री रैंकिंग में ग्लोबली आज 3 नंबर पर पहुंचे हैं। उसी लिए हम लोगों की जीडीपी जो $600 बिलियन हुआ करती थी, आज हम पहुंच के $1.8 ट्रिलियन पहुंच गए हैं। तो ये उसके लिए उनको तो बधाई भी देंगे इस बात की। जिस समय सोना गिरवी रखा गया उस समय मनमोहन सिंह वर्ल्ड बैंक के अधिकारी थे। जो फाइल लेकर चंद्रशेखर जी के पास बलिया 2 अधिकारी गए थे, उन्होंने जानकारी दी थी इसकी। चंद्रशेखर की किताब में इसका जिक्र है, जो उनकी अपनी बायोग्राफी है।
तो किस सोने की बात, किस इकोनॉमी की बात, किस फिलॉसफी की बात, और कांग्रेस की फिर उसी धारा की बात, सत्ता के अतिरिक्त कौन सी ऐसी विचारधारा रही जिसको लेकर माना जाए? धारा दो रही, दोनों ढह गई इस देश में, वामपंथी धारा ढह गई, समाजवादी धारा भी ढहती चली गई, सिमट गई। राज तिलक किसका होगा इस देश में? नेता का होने जा रहा है दिग्विजय सिंह जी, या किसी विचारधारा तो हाशिए पर चलेगी? किसका होने जा रहा है? राजनीति में विचारधारा कभी हाशिए पे जाना नहीं चाहिए और न जा सकती है। विचारधारा हमेशा इस विश्व की राजनीति ही चलाती है। और अगर आप विचारधारा आप देखेंगे तो कांग्रेस पार्टी की विचारधारा हमेशा से कंसिस्टेंटली रही है और उसको हम लोगों ने आगे बढ़ाया है। आज भी मिक्स्ड इकोनॉमी का हम समर्थन करते हैं। आज भी हम लोग सत्ता का विकेंद्रीकरण का हम लोग समर्थन करते हैं। आज भी राइट टू पीपल का हम लोग उसका समर्थन करते हैं। आज भी इंक्लूसिव पॉलिटिक्स का हम लोग समर्थन करते हैं, सांप्रदायिक सद्भाव का समर्थन करते हैं। विचारधारा में कहीं परिवर्तन नहीं हुआ है। आज भी लड़ाई विचारधारा की ही है कि इस देश में सभी धर्म, सभी संप्रदाय के लोग मिलकर काम करेंगे या किसी भी प्रकार के एक वर्ग को अलग रख के राजनीति की जाएगी। रविशंकर जी, बीजेपी की क्या विचारधारा है? देखिए, पहले मैं एक बात क्लैरिफाई कर दूं। इनका इशारा गुजरात की तरफ था, जो माल न्यूट्रिशन की बात कर रहे थे। गुजरात में 3 बार चुनाव हुए, ये सारे विषय वहां आए हैं, जनता उसे रिजेक्ट कर चुकी है। लेकिन जिन्होंने माल न्यूट्रिशन की बात की तो सीएजी की 39th रिपोर्ट ने मार्च 2013 में कहा है कि माल न्यूट्रिशन गुजरात में 2007 से 2012 के बीच में 71% से 39% नीचे आया है, द हाईएस्ट लोएस्ट इन द कंट्री। वो रिपोर्ट मेरे पास है दिग्विजय बाबू। लेकिन आपकी बात कहने के बजाय यहां अरुण पुरी जी बैठे हुए हैं, जिनका मैं बहुत सम्मान करता हूं। इनका इंडिया टुडे ग्रुप हमेशा बेस्ट चीफ मिनिस्टर का खिताब देता है। उसमें नरेंद्र मोदी जी को हिंदुस्तान के बेस्ट चीफ मिनिस्टर का खिताब कितनी बार मिला है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। और स्वाभाविक रूप से अरुण पुरी जी के पैमाने अधिक सख्त हैं, अधिक प्रामाणिक हैं जब वो बेस्ट सीएम की बात कहते हैं। अब आपने एक बात कही कि क्या होगा, किसका होगा। इसके पहले मैं मनमोहन सिंह की चर्चा आपने की। मैं मानता हूं कि कांग्रेस पार्टी भी ये मानती है कि वो कोई मास लीडर नहीं रहे हैं, वो एक अच्छे इकोनॉमिस्ट रहे हैं। तो दिग्विजय बाबू, क्या बात है कि एक अच्छे अर्थशास्त्री की अगुवाई में भारत के अर्थ का अनर्थ हो गया। 1998 में देश की ग्रोथ रेट थी 4.8%। जब वाजपेयी जी की सरकार गई, जिसमें काम करने का मुझे सौभाग्य मिला, तो देश की ग्रोथ रेट थी 8.5%। कारगिल युद्ध हुआ, ईस्ट एशियन इकोनॉमिक क्राइसिस आया, संसद पे हमला हुआ, गुजरात का भूकंप आया, बाकी कई 2002 में अकाल भी पड़ा। हमने कोई इंटरनेशनल फैक्टर नहीं कहा, हमने काम करके दिखाया। वो 8.5% ग्रोथ की विरासत आज 4.8 कैसे हो गई है एक अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री की अगुवाई में? इसका जवाब तो कहीं ना कहीं देना पड़ेगा ना। और दूसरी बात है, वाजपेयी जैसा क्या है कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह वो परफॉर्मेंस भी नहीं कर पाए जो वित्त मंत्री मनमोहन सिंह ने 1991 में कहा था। अंतर एक है, गुड गवर्नेंस का अभाव, भ्रष्टाचार होता रहा, अव्यवस्था होती रही। वो चर्चा हम बाद में करेंगे। आपने कहा बीजेपी का क्या है। बीजेपी के बारे में कहना चाहूंगा शॉर्टली। स्ट्रांग नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद, देश की सुरक्षा के प्रति प्रामाणिक प्रतिबद्धता, गुड गवर्नेंस, देश में विकास के लिए एक इनेबलिंग एटमॉस्फेयर बनाना जहां लोग पूंजी निवेश कर सकें, गरीबों की चिंता करना, गुड गवर्नेंस। और मैं हमेशा मानता हूं, जो मोदी जी ने भी कहा था, गुड गवर्नेंस की सबसे अधिक जरूरत गरीबों को है। अमीर तो अपना काम चला लेते हैं, जब गुड गवर्नेंस होता है तो सबसे फायदा गरीबों को होता है। तो गुड गवर्नेंस, राष्ट्रवाद, इनेबलिंग एटमॉस्फेयर और भारत की जो क्षमता है, प्रतिभा है, उसके अनुरूप देश में शासन देना, ये हमारा। मैं इतना आपको बता दूं कि अगर वेटेड एवरेज लिया जाए एनडीए गवर्नमेंट का और यूपीए गवर्नमेंट का, तो वेटेड एवरेज हम लोगों का 7.6% है, इन लोगों का 5 पॉइंट समथिंग है। दूसरा, 2004 के पहले 2003 का ग्रोथ रेट 2.6% था। लो बेस पर हमेशा नेक्स्ट ईयर हायर ग्रोथ रेट आती है।
उस पर हम लोग नहीं जाएंगे, लेकिन ये भी मैं आपको इंटरप्ट करूंगा। आपका इकोनॉमिक सर्वे मेरे पास लेके आया हूं। एक सुन लीजिए, आप कहिए तो पढ़ दूं। सुन लीजिए, मैं आपके चिदम्बरम साहब ने 2005 में कहा कि 2003-4 में इंटरप्ट करता नहीं हूँ। आप फिर वो आपको आदत पड़ी हुई राज्यसभा की। नहीं, आदत नहीं पड़ी है। मैं आपसे कह रहा हूं कि मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया। जब आप दिग्विजय सिंह भी आ रहे हैं राज्यसभा में, तो आप मुझे इंटरप्ट क्यों कर रहे हैं? राज्यसभा की आदत छोड़ दीजिए, ये आज तक का मंच है। हाउस में अब आप आ गए हैं। जी, मैं आपसे निवेदन ये कर रहा था कि लो बेस पर हमेशा नेक्स्ट ईयर का ग्रोथ रेट हायर होता है। वेटेड एवरेज हम लोगों का कहीं ज्यादा है, इसलिए वो करेक्शन मुझे आपसे करना था। और दूसरा, हम लोगों के आज अर्थव्यवस्था ग्लोबली ग्लोबल इकोनॉमिक कंडीशन से प्रभावित होती है। केवल आज भी, जबकि ब्राजील की इमर्जिंग मार्केट का आज वहां की ग्रोथ रेट 0 है। इसी तरह से आज केवल चाइना और भारत दोनों की ग्रोथ रेट 5% प्लस है। बाकी सारी देशों के हालात हमसे भी और खराब हैं, क्योंकि ग्लोबल रिसेशन से हम लोग प्रभावित हुए हैं। मैं इससे इतनी बार कहना चाहता हूं कि इस कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स में हम लोग इस बात को नजरअंदाज ना कर दें कि जनता आज, मैं फिर से दोहराऊं उस बात को, जनता आज राजनीति और राजनीतिज्ञों के प्रति थोड़ी सी निराश है। और इस निराशा के वातावरण में हम सभी राजनीतिक और राजनीतिक व्यक्तियों को अपना सुधार करना चाहिए और जनता के हित में, चाहे विधानसभा संसद के अंदर चाहे बाहर, अपने जो विश्वसनीयता है अपनी कथनी और करनी में अंतर नहीं करना चाहिए। यही हम लोगों के लिए सबसे बड़ी सीख है। हम जरा फ्लोर के लिए खोल रहे हैं कि कुछ सवाल वहां से आना चाहिए। जो लोग सुन रहे हैं, मेरे ख्याल से इतनी बेरुखी नहीं होगी, नेताओं को लेकर सवाल होंगे। एक आपकी एंकर भी एक सवाल पूछ रही हैं, देखिए आप बता रहे हैं। पूछिए संजय जी। नमस्कार, मेरा नाम संजय सिन्हा है। आपका एक सरकार का विज्ञापन आता है आजकल बहुत, राजीव आवास योजना। उसमें एक बुजुर्ग सज्जन है, वो कहते हैं कि मैं ये देखते देखते बूढ़ा हो गया कि कब पानी आएगा, कब घर बनेंगे, और फिर वो आखिर में ताली बजाकर हंसने लगते हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रतिभा पहचान करेगी खुद की, कहीं उम्र ही ना निकल जाए पहचान होते होते? क्या बात। क्या जवाब आपकी मुकर्रर कहेंगे? मैंने कहा ना कि आपकी बात से सहमत हूं, मुकर्रर कह रहा हूं। ये सही है। रविशंकर जी, मेरा सवाल आपसे है सर। ये आंकड़ों की कलाबाजी तो भी हमने सुनी आर्थिक व्यवस्था को लेकर। सवाल मेरा इस बात को लेकर है कि ये जो राजतिलक के लिए रेस में ईंधन डालने का काम है, क्या उसमें एक बड़ा हाथ अरविंद केजरीवाल का है? क्योंकि इससे पहले महानता की ऐसी मार्केटिंग हमने नहीं देखी थी कि कोई ये बताने को मजबूर हो रहा है कि मेरा जीवन कितना संघर्षपूर्ण रहा है चाय की चुस्की के जरिए, ये बता रहा है कि मैंने चाय बेचकर जिंदगी के शुरुआती दिन किए। या राहुल गांधी जी को देखिए, रेल बजट के एक दिन पहले कूलियों से बात कर रहे हैं। तो ये योगदान जो है रेस में ईंधन डालने का, ये अरविंद केजरीवाल का है मफलर लपेटकर? देखिए, आपकी राय हो सकती है, लेकिन जो हिंदुस्तान की राजनीति में देखता हूं ना, सादगी को कभी फ्लॉन्ट नहीं करते। मनोहर पर्रिकर भी गोवा के हमारे मुख्यमंत्री हैं, आईआईटी के टॉपर हैं, सिंपल बुशर्ट पहनते हैं। अपने बेटे की शादी में कितनी सादगी से कोई चर्चा भी नहीं हुई, कभी उसको दिखाते नहीं है। दिल्ली में बहुत से नेता हो रहे हैं, समाजवादी पार्टी के, इनकी पार्टी के, हमारी पार्टी के, कुशाभाऊ ठाकरे, सुंदर सिंह भंडारी, अडवाणी जी, अटल बिहारी वाजपेयी अपने कपड़े खुद साफ किया करते थे 30 राजेंद्र प्रसाद रोड में, तो उसको फ्लॉन्ट नहीं किया। अब आज की राजनीति में उन्होंने अपनी बात के, मुझे कुछ नहीं कहना है, लेकिन जहां तक चाय की बात है, चाय की बात की शुरुआत तो इन्होंने की, इनके एक नेता ने कर दी, खुलेआम कर दी, तो खुलेआम कर। लेकिन हां, हमारे लिए एक गर्व की बात जरूर है कि एक व्यक्ति जिसकी मां पड़ोस में कपड़े साफ करने का काम करती थी, जिसके पिताजी चाय की दुकान चलाया करते थे, उसका बेटा संघर्ष से आगे बढ़ता है, लोकप्रिय मुख्यमंत्री बनता है और पार्टी उसको प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनाती है। यह हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी का एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है
उसके लिए किसी की जरूरत नहीं है। अगर उसके कारण हम अरविंद केजरीवाल आए हैं, उनका भी स्वागत है। मैंने तो उनकी जीत पर उनको बधाई दी थी। अब कांग्रेस के कंधों पर है, कब तक चलेंगे, कितना गवर्न करेंगे, वो एक अलग चर्चा का विषय है। लेकिन मैं आपको एक अंतिम बात कहूंगा, हिंदुस्तान की राजनीति की डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट करिए और लोगों के विजडम को ट्रस्ट करिए। किसको किसके लिए चुनना है वो ये जानते हैं। जी जी सर, मेरा नाम अमित खेमका है। मैं एक एडवोकेट हूं, लीगल एक्टिविस्ट हूं। आप दोनों से एक बहुत ही विनम्र सा सवाल कि ऐसा लगने लगा है इस देश के लोगों को कि राजनीति सिर्फ सेंसेशन है, जबकि हमने किताबों में यह पढ़ा था कि राजनीति सेवा होनी चाहिए, सर्विस होनी चाहिए। लेकिन आज देखते हैं तो हर राजनीतिज्ञ सिर्फ सेंसेशन की बात करता है, सेंसेशन क्रिएट करता है, उसमें थोड़ा सा हाथ मीडिया का भी है। तो आप लोगों के हिसाब से राजनीति सेवा की होनी चाहिए या सेंसेशन की? दिग्विजय जी। सेवा की ही राजनीति होना चाहिए। सेंसेशन तो ब्रेकिंग न्यूज बनाती है। देखिए, मैं आपसे एक ही बात कहूंगा, इनकी बात से सहमत मैं हूं। सेंसेशन से आप राजनीति के लंबे खिलाड़ी नहीं बन सकते। और देश की राजनीति की सबसे बड़ी अच्छी शुरुआत है, बदलाव है, जो बहुत सुकून देती है कि आपको सेंसेशन से आप एक्सीडेंटल कुर्सी पर आ सकते हैं, लेकिन आपको लोगों के विश्वास जीतने के बाद काम करना पड़ता है, काम दिखाना पड़ता है, लोगों का विश्वास जीतना पड़ता है। तो सेंसेशन इज वन डे फिनोमेना, और पॉलिटिक्स में वन डे फिनोमेना बहुत लोग आए हैं, चमके और गायब हो गए। जी, मेरा प्रश्न है, किससे है आपका प्रश्न? आप दोनों से ही है। अरे वाह। खासकर आप अपना परिचय भी दे दें। हाँ, ये है कि आप परिचय दे दें जरा। मैं कर्नल थापर हूं, कर्नल वीरेंद्र नाथ थापर, नोएडा से। मैं जानना चाहता हूं कि आपके दृष्टिकोण पार्टी से उठकर देश के बारे में कब सोचना शुरू करेंगे, और हर मुद्दे पर आप पार्टियां अपना ही मुद्दा पेश करती हैं। दूसरा, सरकार कब समझेगी कि ऑपोजिशन जो है वो सरकार का ही एक हिस्सा है। देश नहीं चल सकता जब तक वो ऑपोजिशन को अपने साथ लेकर नहीं चलते। दिग्विजय जी। जी, हम लोगों के लिए सीख है, और हम इस बात से पूरी तरह से आपकी बात से सहमत हैं। हम लोग भी देश को ही सोचते हैं, पहले पार्टी का बाद में सोचते हैं। और इसीलिए मैंने शुरुआत में इस बात को कहा था कि आज जो आपने बात कही है, वो मैंने जो बात कही थी, उसी बात से ये भी परिलक्षित होती है। इसलिए हम सबको जवाबदारी और जिम्मेदारी के साथ देश के हित में, और सत्ता पक्ष को, विपक्ष को साथ में लेके, और विपक्ष को भी अपनी जिम्मेदारी समझकर सत्ता पक्ष के सभी अच्छे काम जिसमें भी सहमति हो सकती है, सहमति बनाने का प्रयास करना चाहिए। और मैं इस बात के लिए बधाई देता हूं कि लोकपाल बिल जो पास हुआ है देश में, वो सत्ता और विपक्ष की आम सहमति के बाद ही हो पाया है। उसके लिए मैं दोनों को बधाई देता हूं। रविशंकर जी। देखिए, पहली बात आपकी ये सोच कि पार्टी से ऊपर कब सोचेंगे, ये बात मैं देश की राजनीति में कुछ दिनों से सक्रिय हूं। प्रदेशों में मुख्यमंत्री बनते हैं, ये भी मुख्यमंत्री बने हैं, यहां पर प्रधानमंत्री रहे हैं। आप जब सत्ता में आते हैं तो आपको कुछ पार्टी से ऊपर सोचना ही पड़ता है, और उसके अनुसार बदलाव करना पड़ता है। कई बार कंसेंसस बनाने के लिए आपको अपनी बात छोड़नी पड़ती है। लोकपाल की बात आई, लोकसभा में हड़बड़ी में पारित किया गया था, राज्यसभा में आया, हम लोगों ने विरोध किया, बाद में माने, सेनेट कमेटी का रिकमेंडेशंस आया, एक्सेप्ट हुआ। तो लोकतंत्र में यह होता है। लेकिन यह कहना कि पार्टियां देश के लिए नहीं सोचती हैं, कर्नल साहब बहुत विनम्रता से कहेंगे, यह भी सोच ठीक नहीं है। एक बार अगर आप संसद में आइए या डिसीजन मेकिंग को देखिए, तो कई बार पार्टियों ने देश के लिए सोचा है, अपने पूर्वाग्रह छोड़े हैं, और जो पूर्वाग्रह नहीं छोड़ पाते, जनता उन्हें छोड़ देती है। ये मैं कहना चाहता हूं। एक आखिरी सवाल हम इस पे आ गए अब। रविशंकर जी, क्या ऐसी स्थिति इस देश में होनी चाहिए कि पीएम पद के उम्मीदवार को सामने वाले पीएम पद के उम्मीदवार से कहीं पब्लिक तौर पर डिस्कशन आमने सामने खड़े होकर होना चाहिए? कोई आपत्ति नहीं है, होना चाहिए, अच्छी बात है। 2009 में अडवाणी जी ने कहा था मनमोहन सिंह से,
नहीं, आज भी 2014 की बात अब कर नहीं, रहे हैं। लेकिन मैं एक बात कहूंगा यहां पर, बहुत जरूरी है, बहुत छोटे में कहूंगा, ये फिर दोनों के बीच होना चाहिए जो प्रमुख लोग हैं। अब एक बार इनके एक बड़े गुणी मंत्री हैं, उन्होंने चैलेंज कर दिया कि मैं मोदी जी से बहस करने को तैयार हूं। मैंने बहुत विनम्रता से कहा पहले रविशंकर से बहस कर लीजिए, उनसे बाद में करिएगा। तो बहस वैसी होनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। दिव्य सिंह जी, क्या है ये देश इस मोड़ पर आ गया है, होनी चाहिए बहस? राजनीति में बहस तो होना ही चाहिए, बहस के बिना तो राजनीति होती नहीं है। तो इसलिए रविशंकर जी, हमारी क्या हो रही है, बहस ही हो रही है। और इसलिए बहस किसी भी स्तर पर किसी भी व्यक्ति के बीच में होना कोई बुरी बात नहीं है। राहुल जी को अगला इंटरव्यू देना चाहिए? जी, निश्चित तौर पे देना चाहिए। तो राज तिलक, और आपको बता दूं, देंगे और देते रहेंगे। चलिए हम इंतजार करेंगे, क्योंकि हमें लगा है इस लिस्ट में हम लोग का भी नंबर है ना? है ना? यकीनन है। बहरहाल राज तिलक होगा किसका, इंतजार तो 100 दिन के बाद है, लेकिन इन सब के बीच एक जमीन ये पंचायत के जरिए बन रही है। दो वरिष्ठ नेता इस वक्त साथ में, और फिलहाल हम चर्चा यहीं पर खत्म कर रहे हैं। अगले सेशन के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दिग्विजय सिंह जी, बहुत बहुत शुक्रिया रविशंकर जी। बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद दिग्विजय जी, और धन्यवाद रविशंकर जी।